Dear students, good afternoon to all of you. Today I am your new teacher for class 7th mathematics, and today we are going to discuss a very important and beautiful topic, that is exponents and powers. तो बच्चे इसको पहले हम डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ें रिवाइज कर देते हैं जो you have experienced them already in previous classes. Now here we will see what will happen if things are repeated. If numbers are repeated, what will happen? You have a previous knowledge for a division. What is division actually? Division is repeated subtraction. मतलब we have to subtract the same number from this bigger number, or you can say dividend, and we have to see how many times we get the number subtracted so that finally you must get 0. Like 10 divided by 2, actually it does mean 10, you have to subtract these 2. Let us see how many times, until and unless you get 0. 10 minus 2, that is 8, again bigger than 2, that is why I am again subtracting 2 from this 8, 8 minus 2, 6, still we can subtract 2 and you get 6 minus 2, that is 4, still subtracting 2, that is 4 minus 2 is 2, and again subtracting 2, that is 0. Actually what we have to notice here, we have to see how many times this 2 has been subtracted from this bigger number, that is your dividend 10. Let us count here 2 one time, 2 times, 3 times, 4 times and 5 times. How many times? 5 times. 5 represents as the quotient. Like in an actual division, that is you have to divide this 10 by 2. Now what happens here, again 2 5s are 10. This 5 here, through this method, through this long division method, we get the same quotient what we have got here by subtracting. So you have a previous knowledge of this. All division is whenever and whatever we do it, it is actually we are doing subtraction, repeated subtraction. So division we can say that it is actually repeated subtraction. Observe the next. This is for the division. What will happen if we repeatedly add any number? What does it represent here? Let us add this to again and again, that is a repeated addition and repeated number. 2 has been repeated by how many times? It is 3 times. So we can write it as 2 has been multiplied by 3. 2 3 times. This is the addition, repeated addition. Just we will count them. 2 plus 2 is 4 plus 2 is 6. Here it is same 2 3s are 6. So we can say that the multiplication is the repeated addition. One more, we will take one more example here, that is let it be 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. So I am adding here 3 repeatedly by how many times? 1, 2, 3, 4 and 5 times. So we can write it as 3 multiplied by 5 times. It is times. How many times? You are adding 3, that is 1, 2, 3, 4, 5. And it is the same as 3 multiplied 5, that is 15. Here if we add all these 3's, how many times are 3 has been added here? That is 5 times. If we actually add them, what will happen? 3 plus 3 6 plus 3 9 plus 3 12 plus 3 15. So these two are same. So the conclusion is here, when you repeat subtraction, when you subtract a number from a bigger number again and again, that actually represents the division of a number. And when you add the number repeatedly again and again, that is 2 plus 2, how many times? 3 times we have added this same number, that is 2.
Here one more example, 3 has been added by how many times? It has been added by 5 times, that is 1, 2, 3, 4 and 5. 5 times, just we actually add this and we get 15 answer. This is the same thing as we do in multiplication, that is 3 has been multiplied by 5 times. 3 is occurring repeatedly. How many times it occurs? 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. So this is the simple form of this repeated addition. We can show this. We can lead here that 3 has been added by 5 times, that is simply 3 multiplied 5, that is 15. ये previous class में भी आपने किया है. Repeated subtraction, repeated addition. Now one more thing we want to discuss here, that is our topic today. That is what will happen if we repeatedly multiply a number. You have subtracted the number repeatedly. You have added the same number repeatedly like this, 10 minus 2, 8 minus 2, so on and so on. You added 3 plus 3 plus 3 plus 3, that is 3 multiplied by 4. This is the next form of this addition. Now what happens when we multiply the number, same number repeatedly? That is, if we have 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2. So it has its own form, that is 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2, means you are multiplying the same number 2. You have a 2 number here, you are multiplying it again and again. That is repeatedly by how many times it has been repeated? That is 1, 2, 3 and 4. Just we will write here 2 into 4, no, because this is the form for the addition. So what will happen here? It will just go like this, 2 and this is 1, 2, 3, 4 raised to power 4. This is the form of numbers when they are repeatedly multiplied. Let us see another example here. This is 3. What number is repeated here? That is 3. And on the right hand side, above these 3, on the right hand side, we have to write a number, that is how many times this 3 has been repeated. Just 1, 2, 3, 4 and 5. It is 5. So how? Actually the question is how it is being read. कैसे हम इसको पढ़ते हैं और क्या चीज इसको, ये क्या चीज शो करता है. जैसे आपको 3 multiplied by 4, 3 multiplied by 4, तो आप अगर थोड़ी सी प्रीवियस आपके पास बेसिक्स हैं तो आप जस्ट कह सकते हैं कि सर 3 हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स, 3 4s are 12, और सिंपली 3 हैज बीन एडेड बाय हाउ मेनी टाइम्स? 1 2 3 4 टाइम्स. बट इसको कैसे पढ़ें और इसका क्या फायदा है और क्या इसको कैसे हम, दो चीजें हैं, अलग अलग नाम है इनके, 3 raised to power 5 है, 2 raised to power 4 है. और हम देखेंगे अगर हमारे पास 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 अलग चीज है ना, कम से कम यहाँ आपके पास कंफ्यूजन खत्म होना चाहिए बेटा. दिस इज repeated addition, just you have to add 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, or you can write it as 3 multiplied 4, that is 3 4s are 12. It is 5, then you can say 3 5s are 15. Now what is this? This shows the repeated addition. So we have 3 raised to power 5 here. 3 raised to 5 means you have to multiply 3 by how many times? 5 times. If we actually multiply it, we will get here 3 3s are 9, 3s are 27, 3s are 81, 3s are 243. 3 raised to power 5. But 3 multiplied 5, that is 15. So both answers are different. हम आपके पास थोड़ा सा रिहर्सल के लिए ये दिखाना चाहते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि भाई एडिशन, रिपीटेड एडिशन क्या चीज है और रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन क्या चीज है, और इसमें कौन सा ज्यादा है. जैसे हम नहीं कहते कि एक्सपोनेंशियली ये स्ट्रांग हुआ, एक्सपोनेंशियली ये बढ़ा, तो उसका मतलब क्या है वो शायद यहाँ पे आपको वो कंफ्यूजन दूर हो सकता है. 2 1 means simply you have to add 2 one time. 2 means 2, that is 2 1s are 2. दो हमारे पास है. When you add one more 2, means you are adding the same number 2 by 2 times.
that is written as 2 multiplied by 2 2s are 4. Here same thing, but the sign is different. Here the sign of addition is here, and you have a sign of multiply in between the two numbers, 2. That is 2 multiplied by 2, again 4, but this is written as 2 raised to power 2. It is read just like that, 2 raised to power 2. 4, 2 raised power 2 means 2 has been multiplied by 2 times, that's again 4, no problem. So what happens here, 2 has been added 3 times, that is simply 2 multiplied by 3. Again the same logic, multiplication is a repeated addition. Now what happens here, 2 has been multiplied repeatedly, 3 times multiply each other. 2 multiply 2 multiply 2. But the form is different to represent it. It is 2 raised to power 3. तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको जैसे आपने लिखते हैं, आप जैसे लिखते हैं 3 रेज पावर 5, लिखने का तरीका भी इसमें ये ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा लिखोगे दोनों को एक जैसे इसमें क्या नाम इसका फॉन्ट में, तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, इसको 35 ही कोई पड़ेगा। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, पहले लिखने का तरीका हमारे पास एक्सपोनेंशियल का आना चाहिए। दैट इज 3 रेज्ड पावर 5, 3 बड़ा होना चाहिए और 5 जस्ट छोटा होना चाहिए इसके साइज से और ऊपर लगना चाहिए। दिस इज प्रॉपर वे हाउ टू रिप्रेजेंट दिस एक्सपोनेंशियल। सो it is 2 has been repeated added by 3 times. Now here multiply has been 3 times, the same 2. Here 2 raised power 3 means 2 2s are 4 2s are 8, हमारे पास 8 है, और here 2 multiplied by 3 तो हमारे पास 6 है। तो इसलिए ये जो है मल्टीप्लाई रिपीटेडली जो हम करते हैं कि ये ज्यादा बढ़ जाता है as compared to the repeated addition. Here 2 has been added how many times? 4 times, 2 plus 2 plus 2 plus 2, that is 2 4s are 8. Now when you multiply the same 2 by 4 times, when you multiply it, what will happen? First of all, you have to write it in the form of 2 raised to power 4. 2 raised power 4 means that 2 has been multiplied by how many times? This shows how many times. That is 2 multiplied by 4 times. 4 times multiply करके हमारे पास आता है 2 2s are 4 2s are 8 2s are 16. When you multiply 2, when you add 2 4 times, the answer is 8. But when you multiply the same 2 by 4 times, then you have a 2 raised to power 4, and that means you got 16 result. So the results are entirely different. Here addition, repeated addition, this is repeated multiplication. So ये चीज अलग हो गई कि भाई एक्सपोनेंशियल अलग एक चीज है और एडिशन अलग चीज है, मल्टीप्लाई जिसको हम करते हैं। 2 4 बार है तो 2 multiplied by 4, 2 4s are 8, simple. But what happens here, 2 multiply 2 again and again, that is 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. It is just double after every step. It is 2, then 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64, likewise. इसलिए ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। अब हम इसको देखते हैं, आपने देखा फॉर्म कैसा, अब देखते हैं कि इसको पढ़ते कैसे हैं और क्या क्या दो चीजों का अलग अलग इसके नाम भी होते हैं। सो वी विल डिस्कस हियर सम एग्जांपल्स so that you may know how to write and what it is called. Like 2 raised to power 7. This is the form of this exponential form, we can say it. It is 9 raised to power 3. It is 17 raised to power 5. It is 2 raised to power 3. 16 raised to power 9. ये सब एक ही फॉर्म के हैं, ऐसी फॉर्म को हम कहते हैं ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अब दो चीजों का एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो उसमें दो चीजें इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास। एक बड़ा सा है नीचे जो नंबर लिखते हैं, और मैंने बोला जो ऊपर इसको राइट साइड के ऊपर कॉर्नर में लिखते हैं, दैट मस्ट बी स्मॉलर इन साइज देन दिस। नाउ हियर इज 2 एंड रेज्ड पावर, पहले इसको पढ़ा कैसे जाता है, दैट इज 2 रेज्ड टू पावर 7. Again, if you have 9 raised power 3, how will 9 raised to power 3? It is just 9 multiplied by 9 multiplied by 9. So this is called a base. इसको हम बेस कहते हैं, और जो ऊपर इसके ऊपर लगा हुआ है छोटा सा डिजिट आपके पास 3 है, and this 3 is called exponent.
Again here 16 raised power 9. What is base? This is base is 16 and what is power here? That is 9. बच्चों क्या आप मुझे बता सकते हैं अगर आपके पास है 2 raised power 11, what is base here and what is the exponent here? Simply base is here 2, this is called here base, and what does this call? We call it as exponent or power. This is exponent. If you have minus 4 raised to power 5, what is base here? Base is minus 4. No matter it can be a negative integer or a positive integer. हमें उससे कोई मतलब नहीं. मतलब ये है कि पहले आप इसमें एकदम मास्टरी होनी चाहिए कि which number is called base and which is exponent. और फिर आपको बता देंगे इसका मतलब क्या है कि फिर 4 raised to power 5 what does it mean? Here base is 4 and power that is 5. Or you can say exponent is 5. This is minus 4 raised to power 5. Minus 4 raised to power 5 जो आपके पास है एक्चुअली उसको हम कैसे करें और क्या मतलब है इस चीज का? Minus 4 raised power 5 just like that मैंने पहले ही आपसे डिस्कस किया था जैसे 2 raised power 3 है means you are multiplying same number by how many times? 3 times. Exponent ये ऐसे ही पता चलता है कि भाई बेस को हम कितने बार मल्टीप्लाई करें. दिस रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं. माइनस सिंपली माइनस 4 raised power 5 that is simply you are going to multiply this minus 4 by how many times? This is 5 times. 1 2 3 4 and one more is here that is minus 4. और इसको आगे हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं नो प्रॉब्लम. बट सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपके पास. कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली है क्या और इसका मतलब क्या है. इसको हम कैसे फिर इस फॉर्म में डालते हैं. अगर आपके पास -7 -7 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो अगर इसको कहा जाए कि एक्सपोनेंट फॉर्म में कर लो यू कैन -7 रेज्ड टू पावर 3. क्लियर. तो बच्चे आपने देखा कि इस फॉर्म में हम एक बार फिर आपको कहेंगे वही बेस इज हियर 2 एंड व्हाट इज हियर पावर इज 5 जिसको आप एक्सपोनेंट भी कहते हैं. So this is how this can be read. It is 3 raised power 4 and this is 5 raised power 2. 5 raised power 2 इसको भी अलग भी पढ़ सकते हैं. हम कह सकते हैं इसको भी this is 5 squared. Actually 2 को हम स्क्वायर कहते हैं. और likewise अगर क्यूब आपके पास है 7 raised power 3 you can write it as 7 cubed. Or simply you can say this is 7 raised power 3, this is 5 raised power 2, this is 3 raised power 4. What is base here? It is 7 obviously and power is exponent is here 3. Again now कुछ फॉर्मूलाज कुछ लॉज होते हैं हमेशा. तो मैथमेटिक्स में आपको पता है फॉर्मूलाज होते ही होते हैं. हर एक चैप्टर के अलग अलग हैं. लेकिन आज की बात ये हटकर है कि हम पहले क्वेश्चन करते हैं फॉर्मूला उसमें अपने आप आ जाएगा आपको. हम पहले फॉर्मूला और फिर रट्टे करने की बात होती है तो ऐसा नहीं करेंगे. हम थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं. अगर आपके पास एक सिचुएशन है यहाँ पे तो आपको पता है क्या चीज कि अगर 2 raised to power 5 means you are multiplying 2 by 5 times. Clear? This is single number 2 raised to power 5. If you have a situation like this 2 raised to power 2 multiplied by 2 raised to power 4. First of all you have to see on these two numbers bases. Here what is base? Base is 2. Same is here base is 2. Same. So base जो है ना bases are same here. Bases are same. But powers are different here. It has a got power of squared and this got a power of 4. तो इसको कैसे हम ले सकते हैं और इसको कैसे हम आगे बनाते हैं क्वेश्चन को और इससे क्या मिल जाएगा हमें वो देखते हैं हम. हमारे पास क्वेश्चन है 2 squared multiplied by 2 raised to power 4. Actually what does it mean? 2 has been multiplied by 2 times. ये हो गया इसका. Again multiply 2 has been multiplied by how many times? We will multiply it 4 times. This again 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2. ये 4 आए इसके और ये 2 बार था 2 स्क्वायर. अब क्या है कि अभी पूरा जो क्वेश्चन है इसमें ऐसे ही लिख सकते हैं. अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको बताना ये फॉर्म जो है आपके पास जैसे 3 raised power 9 इसको कहते हैं हम क्या ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. उस फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करेंगे हम इनको काउंट करते हैं. पहले हमने देखा कि एक ही नंबर 2 that has been repeatedly multiplied
एंड हाउ मेनी टाइम्स हैज बीन मल्टीप्लाइड. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये लिखना है कि कौन सा नंबर है जो रिपीट हो रहा है मल्टीप्लिकेशन में, दैट इज हियर 2. And how many times has been repeated? This is just, you can count here, very easy. This is 1 2 3 4 5 6. So we can write it as 2 raised to power 6. अब एक्चुअल में देखते हैं क्या इज इट सेम एज, क्या ये वही चीज है जो हम इधर करने जा रहे हैं, दैट इज 2 स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज्ड टू पावर 4. अगर बेसिस सेम है, चलो एक ही बेस हम लिखते हैं, और ये देखो 6 आना चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि 2 मल्टीप्लाई 4 2 4 8, 6 तो नहीं आया ना, मल्टीप्लाई भी नहीं हुआ. अगर माइनस करते हैं 2 - 4 दैट इज -2, तो ये माइनस भी नहीं हुआ है. क्या ऐड हुआ है? फिर जरा देखते हैं. इसका 2 रेज़ पावर 2 और प्लस इसका पावर है 4, दैट इज सिंपली 2 रेज़्ड पावर 6. क्या सेम आंसर दोनों में है? दिस इज द एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन. और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अगर दो आपके पास अलग अलग है, सेम बेस है, अलग पावर्स है, उनको हम कैसे रख सकते हैं? हम ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा फायदा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, बहुत बड़ा फायदा है. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मैं क्वेश्चन बताता हूं 2 रेज़्ड पावर 105 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस टू 105 टाइम्स. तो 105 टाइम्स लिखते लिखते तो मुझे लग रहा है 1 घंटा बीत जाएगा इसमें, और शायद ये बोर्ड की स्पेस भी कम पड़ जाएगी. इसलिए उस बड़े से नंबर को छोटा करने के लिए हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज करते हैं. दिस इज सिंपली 2 रेज़्ड पावर 105. जैसे आपका कहीं भी आपको कह रहे हैं कि भाई यहां से जो सन तक है या और कोई प्लेनेट हम ले लेते हैं, वहां तक इतने मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो उतने मिलियन पढ़ते पढ़ते तो हमें बहुत टाइम लग जाता है और लिखने में भी हमारी प्रॉब्लम है. तो इस चीज को कन्वीनियंट बनाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, और ये इसको किस फॉर्म में हम डालते हैं, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डालते हैं. 2 रेज़्ड पावर 6 लिखने के लिए देखो कितनी स्पेस हमारे पास चाहिए, और अगर ये 2 रेज़्ड पावर 600 होता तो हमारा पूरा बोर्ड इसी में आ जाता. इसलिए उस चीज को शॉर्ट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्म है. तो दिस इज सिंपली 2 रेज़्ड पावर 6. जब आपको सही से समझ आएगा तो आप ऑटोमेटिकली कह सकते हैं सर कि 2 हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम्स. अब हम देख सकते थे कि एक्चुअल क्या है और ये हम क्या कर सकते हैं फिर पावर्स के साथ. एक्चुअल मैंने किया 2 को 2 बार, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया है. सिंपली जब मैंने देखा कि 2 को 6 बार कर रहा हूं, दैट इज 2 रेज़्ड पावर 6, वेरी इजी. अब मैं इसको लेता हूं और मैं देखता हूं कि कोई रिलेशन है इनमें कि नहीं. हमने देखा इन पावर्स को, मैंने सिंपली फिर वही क्वेश्चन लिया 2 रेज़्ड पावर 2 2 रेज़्ड पावर 4. अब हमने क्या किया कि हम देखते हैं कि भाई क्या इनमें कोई रिलेशन है, 2 पावर 2 और पावर 4 में कोई रिलेशन है, सो दैट वी विल गेट द सेम आंसर, दैट इज 2 रेज़्ड पावर 6. अब हमने क्या किया, यहां पे देखा हमने कि चलो 2 रेज़्ड पावर 2 2 रेज़्ड पावर 4 एक ही चीज है ना, 2 ही है ना, बेस तो सेम है, एक ही बेस लिखी जाती है, चलो 2 लिखते हैं. फिर हमने काफी चीजें आजमाई. मैंने आजमाया कि भाई अगर मल्टीप्लाई करें 2 4 जार तो हमें आंसर 6 आना चाहिए, 8 आता है, इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं हुआ. सब्ट्रैक्शन में भी आपको बताया कि 2 - 4 करें या 4 - 2 करेंगे, 2 आंसर आता है, -2 आंसर आता है, लेकिन हमारा आंसर नहीं आ रहा. फिर मैंने और एक चीज की, मैंने क्या किया, जस्ट एडेड दिस पावर, दैट इज 2 + 4 दैट इज 6, तो हमें सेम आया. इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लाई, इतने सारे मल्टीप्लाई करने के बदले हम क्या करेंगे, इसके बगैर हम डायरेक्ट नंबर्स को ले लेते हैं. अगर सेम बेस है तो पावर को ऐड किया जाता है. चलो एक से एक एग्जांपल से हम नहीं कंक्लूजन पे आते हैं. चलो हम और देखते हैं क्या ये हर एक जगह पे ये अप्लाई होता कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 7 रेज़्ड पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 रेज़्ड पावर 3. So what does this represent, 7 raised power 2? Just you have to multiply 7 by 2 times. This has gone now. Multiply again, one more term is here, that is 7 cubed or 7 raised to power 3, means 7 to be multiplied by how many times? Again 3 times. Here it was multiplied by 2 times and this was supposed to be multiplied by 3 times. But same number has been multiplied by how many times now? 1, 2, 3, 4, 5 times. So we can write it as 7 raised to power 5. This is the actual. अब देखते हैं इसमें क्या रिलेशन है. अगर हम फिर लिखते हैं 7 raised power 2 और 7 squared and 7 cubed. सिंपली अगर इस 7 को ले लेते हैं हम बेस, तो पावर्स का क्या मसला हुआ कि हमारे पास 5 आना चाहिए.
अगेन अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 3 जार, ये पावर 2 है, ये 3, अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 3 जार 6 आता, नहीं 5 होना चाहिए अगर कोई रिलेशन है। इसका मतलब इसका रिलेशन मल्टीप्लाई से नहीं है पावर इसका। सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 - 3 दैट वुड बी -1, इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं करता है, तो ये भी हमारे पास नहीं है। तो और एक चीज है जो वहां पे हमने आजमाई कि हमने ऐड करना, चलो देखते हैं क्या वो यहां भी काम करता है कि नहीं ये आइडिया। दिस इज 7 रेज्ड पावर 2 + 3, दैट वुड सिंपली 7 रेज्ड पावर 5, और यही 7 रेज्ड पावर 5 था, यही था। तो ये सेम है, इसलिए क्या है हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि अगर आपको कोई भी दो नंबर्स सेम बेस लेकर पावर क्या भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, तो हम बगैर इसके साधारण सा मल्टीप्लाई जिसमें बहुत टाइम लगता है और काफी समय और काफी स्पेस लग जाती है, तो हम कंक्लूजन पे पहुंचे कि भाई इसको कैसे करते हैं। अगर दो नंबर्स ऐसे हैं, इनको फैलाने में बहुत टाइम लगेगा और इसको रिप्रेजेंट करने में, फिर मल्टीप्लाई करने में इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। सो व्हाट हैपेंस हियर, जस्ट दो एग्जांपल से हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि भाई 7 और 7 बेस सेम है, यहाँ जैसे 2 और 2 सेम बेस है, एक ही बेस को रखते हैं और इनके पावर्स को हमने क्या किया, ऐड किया है। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे जब भी आपके पास सेम बेस वाले पावर क्या भी हो तो उन पावर्स को ऐड कर लो तो आपके पास एक्चुअल आंसर आता है। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। ये आपके पास है 9 रेज्ड पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 रेज्ड पावर 4। क्या हम वही ट्रेडिशनल वाला कर लेंगे कि भाई 9 को मल्टीप्लाई 3 टाइम्स कर लो, फिर 9 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो। चलो एक बार आपके लिए फिर देखते हैं, 9 × 9 × 9, ये 3 हो गया बड़ा क्यूब्ड। अब 4 का है 9 टू बी मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स। दिस इज 4 टाइम्स एंड दिस वन इज multiplied by 3 times, isn't it? Now what happens here, it has just you have to write 9 there, it is exponential form would be like this, 9 raised to power 1 2 3 4 5 6 7 raised power 7, because the same 9 has been multiplied by how many times, this 1 2 3 4 5 6 7 times, and this is the same जैसे अभी आपने एग्जांपल 2 में आपको समझाया कि सेम है कि हम ऐसा करें, इस नंबर को लाएंगे 9 रेज पावर 3 जो आपके पास क्वेश्चन है, सिंपल सा है कि इसको 9 एक ही बेस रखो क्योंकि सेम है, और रेज्ड पावर क्या करेंगे 3 + 4, दैट विल बी लाइक 9 रेज्ड पावर 3 + 4 इज 7। तो हम एक कंक्लूजन पे आए, हमें हमारे पास एक 2-3 एग्जांपल से हम एक कंक्लूजन पे आए कि हमारे पास एक फॉर्मूला बना। वो फॉर्मूला क्या है, जब भी आपके पास बेसिस सेम, लेट a बी द बेस and any power n, means a is being multiplied by how many times, n times, multiplied same base and raised to power m, a has been multiplied by m times, simple। 9 has been multiplied 3 times, this is another 9 has been multiplied 4 times, तो अलग अलग दो चीजें हैं। इसी तरह इधर भी मैंने क्या किया कि सेम बेस रखी वही a, और पावर इसको यहां तक कंक्लूड हम कर लिए कि भाई हमने, आप ट्रेडिशनल में नहीं जाना है कि मल्टीप्लाई 9 रेज पर 1000 होगा, आप 1000 बार मल्टीप्लाई करोगे, नहीं। अब हमने यहाँ पे कंक्लूड किया कि आप सिंपली से आप देख सकते हैं कि बेस अगर सेम है तो एक बेस एक ही लिखो जैसे मैंने लिखा 9 में से, और पावर जो है उनको ऐड कर लो जैसे मैंने किया इधर ऐड। तो हम यहाँ भी कंक्लूजन पे पहुंचे कि n + m कर लो। तो ये आपके पास एक एक्सपोनेंशियल और पावर्स में जो आपका टॉपिक है उसमें ये पहला एक फॉर्मूला हमने बनाया। तो हमने बिल्कुल हट से किया कि वरना क्या करते हैं, पहले फॉर्मूला लिखते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं, हमने बिल्कुल उल्टा किया। पहले हमने क्वेश्चन लाए और क्वेश्चन में से हम कंक्लूजन पे पहुंचे कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास है तो आपको डायरेक्ट जाना, यू हैव टू ऐड द पावर्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कंक्लूजन पे हम ये आए कि जब भी आपके पास सेम बेस है और ये हो जाता है तो हमारे पास एक जनरल चीज आई कि a raised power n a raised power m is equal to a raised power n + m। तो इसके साथ जो है आपके पास खुद भी एक क्वेश्चन बना सकते हो, और आपके एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चन है जहां पे ये चीज हम अप्लाई कर रहे हैं। खाली दो चीजें देखने की, बेस सेम है, पावर जो भी है, तो हम फाइनली क्या करते हैं, उनको ऐड करते हैं। तो इंशाल्लाह जो है आगे वाली क्लास में हम आगे जो फॉर्मूलाज आपके पास है उनको भी क्रिएट करने की कोशिश करें। होप यू माइट हैव एंजॉयड द क्लास। थैंक यू वेरी मच।